Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 15, course Linear Algebra. In this lecture, we will be talking about vector space. Okay, so basically, vector space, it is the non-empty set V. Okay, it is the non-empty set V of objects called vectors on which are defined two operations, कौन से operations called addition and multiplication, रियल नंबर्स की बेस पे. Subject to the 10 axioms. These are rules. We will see what rules are they listed below. Okay, the rules must hold for all vectors u, v and w in v. ठीक है, जो सेट v है उसके अंदर ये तीन वेक्टर हो u v w, तो इन सब के लिए वो होल्ड करे. इन फॉर ऑल स्केलर्स, अगर कोई स्केलर्स हैं आपके पास c एंड d. ओके, तो इसके बाद हमारे पास हम अब अपने 10 रूल्स लिख लेते हैं. ये पहले कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, what are these rules? U plus v is in v. U plus v is equal to v plus u, and u plus v plus w should be equal to u plus v plus w. हम पहले क्या करते हैं, पहले शॉर्ट ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. Number 4 rule, there is a zero vector such that 0 plus u is equal to u. और पांचवा रूल है, for each u in v there is minus u, so that u plus minus u is equal to 0. Sixth rule, c into u plus v is equal to cu plus cv. Eighth rule है, c plus d into u is equal to cu plus du. Eighth rule है, c into du is equal to d cd into u. Ninth rule है, if you are multiplying 1 dot u, that should be u. 10th rule है आपके पास, स्केलर मल्टीपल ऑफ u बाय c, that is cu, वो भी v के अंदर हो. ओके, सो दीज 10 रूल्स टू बी होल्ड इन. अब हम एक थ्योरम लिखेंगे. That theorem is
let V be a vector space and U be a vector in V and K a scalar. So then 0 of U is equal to 0, K of 0 is equal to 0, minus 1 into U is equal to minus U, and if Ku is equal to 0, then either K is equal to 0 or U is equal to 0. Okay, now we'll talk about some subspace. A subspace of a vector V is a subset H of V that has three properties. First property A, the zero vector of V is in H square. B property is H is closed under, ये आपने क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू जो होता है एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 2 में शायद पढ़ा होगा मैथ्स में. H is closed under vector addition, that is U is in H, V is in H, so U plus V is in H. थर्ड प्रॉपर्टी जो है H is closed under multiplication by scalars. अगर U is in H है और कोई स्केलर C उससे मल्टीप्लाई करता है U से, तो वो भी H में मौजूद होगा. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल 6 है. एग्जाम्पल 6 के अकॉर्डिंग the set consisting of only the zero vector in a vector space V is a subspace of V called a zero subspace and written as this, what I have written earlier. Okay, अब आगे फिर एक आपके पास थ्योरम है. वो थ्योरम क्या कहता है? If vectors V1 to Vp are in a vector space V, then span V1 to Vp is a subspace of V. Let's see example number 12. That says for what values of H will Y be in the subspace of R cube spanned by V1, V2 and V3. ठीक है, पहले हम लिखते हैं V1 क्या है. 1 minus 1 2. V2 क्या है? 5 minus 4 minus 7. V3 क्या है? minus 3 1 0. और Y क्या है? minus 4 3 और H. ठीक है, वो कहते हैं for what value of H will Y be in the subspace of R cube spanned by V1, V2, V3. आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने ना H की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम और लेट्स सपोज कर लेंगे सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर वो स्पैन
बाय V1 V2 V3 करेगा तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ये तीनों वेक्टर्स लेट्स सपोज कर ले, लिखते हैं 1 -1 2 5 -4 और -7 और -3 1 0, और ये वाला वेक्टर जो y है इसको लिखते हैं -4 3 और 8। ठीक है, ये जैसे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं और एक ये कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होती है वो, फिर इसके ऊपर रो ऑपरेशंस करते हैं, उसे रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में लेके आते हैं। तो रो ऑपरेशंस के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि ये एक्लन फॉर्म ही आप बना लेंगे तब भी 1 5 -3 -4 0 0 1 0 -2 -1 और 0 -5 +8। अब सिस्टम के कंसिस्टेंट होने के लिए ये सारी वैल्यू 0 के लिए बराबर होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ से x1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से x2 की वैल्यू मिलेगी और x3 फ्री वेरिएबल है। सिस्टम के कंसिस्टेंट होने के लिए ये सारी चीज इसके बराबर हम रखते हैं, तो ये भी ये वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, -5 + h इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें h की वैल्यू मिलेगी जो कि 5। तो h की वैल्यू हमें पता लगानी थी, वो हमने पता लगा ली। ठीक है, अच्छा अब हम एक डेफिनेशन देखेंगे। वो डेफिनेशन क्या है, द नल स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A written as null A। ठीक है, द नल स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A है, जिसे हम नल A ऐसे लिखेंगे, और इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस का सेट होगा ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन AX इज इक्वल टू 0। In set notation, null A is equal to x such that x is in Rn and Ax is equal to 0। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इसके अंदर वो कहता है लेट ए बी अ मैट्रिक्स इन टू अबव, जो एग्जांपल 2 में हमने यूज किया वही, और u जो है 5 3 और -2 है। डिटरमिन इफ u बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ द ए। ठीक है, हमने क्या करना होता था, अगर हमने कोई वेक्टर u गिवन होता था, हमने पता लगाना हो कि वो नल स्पेस में लाई करता है या नहीं, तो हम a u कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर 0 आता है या नहीं। और अगर आप पिछला अपना मैं वो बनता था 1 -5 -3 9 मैट्रिक्स A है ये, -2 और 1, और u आपका ये 5 3 -2। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल सी दैट कि आंसर जो है वो 0 0 0 है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं दिस u इज इन नल ए। ठीक है, अब एक और थ्योरम है वो देख लेते हैं। द नल स्पेस ऑफ अ m cross n matrix, the null space of m cross n matrix A is a subspace of Rn equivalently the set of all solutions to a system, किस सिस्टम के solutions Ax is equal to 0 के, of m homogeneous linear equations in n unknowns, m homogeneous equations n unknowns is a subspace of Rn। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है उसे देखते हैं।
एग्जाम्पल 2, जिसमें वो कहता है कि let H be the set of all vectors in Rn whose coordinates A, B, C and D. Satisfy the equations. कौन सी equation? A minus 2B plus 5C is equal to D and C minus A is equal to B. Show that H is in subspace of R4. देखते हैं इसके साथ हम क्या करेंगे। आपके पास A की इक्वेशन ये हो गई, A minus 2B plus 5C माइनस डी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन होगी माइनस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। 4 अननोन्स आ गए, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये m क्रॉस n होता है हमारे पास। तो पीछे जो हमने थ्योरम में देखा था, m होमोजीनियस इक्वेशंस और n अननोन्स, और ऑर्डर क्या होता था m क्रॉस n, यानी कि ये हो जाएगा 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। और द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स सो बाय थ्योरम जो हमने पिछला पढ़ा, इट इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन। ठीक है, और n क्या था आपका, नंबर ऑफ अननोन्स थे। सो बाय थ्योरम H, जिसकी ये दो इक्वेशन है, इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन। चलिए अब एक और एग्जांपल है, उसे देखते हैं, एग्जांपल 3। इसमें वो क्या कहता है, फाइंड अ स्पैनिंग सेट फॉर द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए है, -3 1 2 6 -2 -4 -1 2 5 1 3 8 -7 -1 -4। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। आप इसके ऊपर रो ऑपरेशंस करेंगे और एट लास्ट आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरह से बनेगी, 1 0 0 -2 0 0 0 1 0 -1 2 0 3 -2 0। और ये ठीक है। अच्छा, उसने सवाल दोबारा रिपीट कर दिया, तो फाइंड स्पैनिंग सेट फॉर द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। आप कह सकते हैं बेसिकली हमें बेसिस फाइंड करनी है फॉर द नल स्पेस। हम कैसे करते थे बेसिस फाइंड, जो फ्री वेक्टर्स होते थे उनके साथ, फ्री वेरिएबल्स के साथ जो उनके वेक्टर्स होते थे वो बेसिस फॉर द नल स्पेस होते थे। वो हम कैसे करते थे कि हमें x1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 क्या है यहाँ पर 2x2। ठीक है, और अच्छा, जब हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस ए मैट्रिक्स को रो ऑपरेशंस करना, तो हम क्या करते हैं, ए और जीरो का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और जीरो का अगर मैं लूंगा इस तरह से, तो यहाँ पर ही आपके पास ऑटोमेटिकली एक जीरो वेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इज इक्वल टू के उस तरफ वाली साइड होगी, ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और फिर आप x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो x1 इज इक्वल टू 2x2, ये इज इक्वल टू के इस वाली साइड है। ठीक है, ए x1 इज इक्वल टू 2x2 एंड प्लस x3 और -3x5, और x2 आपके पास फ्री वेरिएबल है, दैट विल बी x2। x3 की वैल्यू फिर आपके पास यहाँ से आ रही है, तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 2 -2x4 एंड +2x5,
और x4 भी फ्री वेरिएबल है, तो x4 इज इक्वल टू x4 और x5 भी फ्री वेरिएबल है एंड x5 इज इक्वल टू x5। अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकालूं x1 x2 x3 x4 एंड x5, तो ये तीन फ्री वेरिएबल्स के साथ आएगी। पहला वेक्टर मैं लिखूंगा x2 के साथ, फिर दूसरा मैं लिखूंगा x4 हमारा फ्री वेरिएबल है उसके साथ, और प्लस x5 के साथ, और फिर मैं इनको दोबारा लिख सकता हूँ x2 u, ये जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 2 1 ट्रिपल 0 -1 0, सॉरी 1 0 -2 एंड 1 0 x4 के साथ, और x5 के साथ आएंगे -3 0 2 0 1, और मैं इससे u कह दूंगा, इसे v और इसे w, x2u प्लस x4 v और प्लस x5w। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करने थे असल में। एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u v एंड w इज एन एलिमेंट ऑफ नल ए। ठीक है, थस u v w, ये जो तीन वेक्टर्स होंगे ना u v और w, ये स्पेनिंग सेट होंगे नल ए के, या एक तरह से आप कह सकते हैं बस वही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन को इस तरह से चेंज करके भी ई पूछा जा सकता है। तो स्पेनिंग सेट फॉर नल ए फाइंड करने के लिए आपको वही उसी तरह बेसिस फॉर नल ए फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक नोट लिखेंगे। नोट के अंदर वो कहता है कि x2u प्लस x4v प्लस x5w can only can be only if the weights x2, वेट्स कौन से हैं, ये x2 है, x4 है और x5 है, आर ऑल 0। ये वेट्स कब होंगे, x2u प्लस x4v प्लस x5w कैन बी ओनली द वेट्स x2 x4 x5 आर ऑल 0 ओनली इफ द वेट्स, ठीक है, ये 0 होने चाहिए। व्हेन नल ए contains non-zero vectors, the number of vectors in the spanning set for null A equals the number of the free variables in the equation। किस इक्वेशन में ax is equal to 0। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। व्हेन नल A contains non-zero vectors, जब नल A के अंदर नॉन जीरो वेक्टर्स आते हैं, तो द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द स्पेनिंग सेट फॉर द नल ए, जैसे हमारे पास भी तीन वेक्टर्स है स्पेनिंग नल ए के अंदर, इक्वल्स द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। तो जाहिर बात है वो उतने ही वेक्टर्स आते हैं जितने फ्री वेरिएबल्स होते हैं। x2 फ्री वेरिएबल था, x4 फ्री वेरिएबल था, x5 तीन फ्री वेरिएबल्स है और तीन ही वेक्टर्स है u v एंड w। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम कुछ इसी तरह के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।